Hello, Arvi. Good evening, Harish. Ma'am, there seems to be some problem. I'm accepting it, but it's not coming. Good evening, Harish. Guys, let me try to once again. For some reason, the accept button is not getting clicked. Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am, it shows that you're not able to join. Okay, ma'am, I'll send it to you again. अरवी हम मैम को इनवाइट कर रहे हैं इन नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा इशू आ रहा है ओके गुड इवनिंग मैम Finally. थैंक यू मैम I can see you. थैंक यू सो मच Yeah, बच्चा. So, ma'am, first of all, thank you for all the patience and joining in. A little introduction about yourself, that vibrant smile, that put in a lot of josh in me, and I'm sure it is putting in a lot of josh for everyone who is waiting. Hello, Yeah. Jagdish. A little introduction about ma'am, like we know, she's an ex-army officer, Delhi University professor, a motivational speaker. She has a PhD in psychology. She's also an MBA in HR, and on top of that, she's also a national level handball player. Ma'am, thank you so much for accepting our request and coming live with us this evening and for waiting for all this long to get connected. Thank you, ma'am. Thank you so much, Divya. Nothing like that. If I'm able to help you with aspirants, Indian Army is looking for young girls like you all. So I'm here to just to, whatever queries you have, you can come up with that. Yes, ma'am. लगता है किसी ना किसी के एक्सपीरियंस से कुछ किसी को हेल्प हो जाए तो व्हाट बेटर टू राइट चलिए Yes, yes. थैंक यू मैम तो मैम जैसे कि हम सबको पता है कि आप सिविल बैकग्राउंड से आते हैं तो वील गेट स्टार्टेड विद दिस मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑलवेज हैव क्वेश्चंस कि हम सिविल बैकग्राउंड से आते हैं विल आई बी एबल टू डू इट एज अ सिविलियन हमें उतनी नॉलेज नहीं होती क्या करना है तो मैम दैट टाइम अभी तो इंटरनेट रिसोर्सेज सब हो गए हैं बट उस टाइम पे मैम व्हाट वाज इट दैट लेड यू कि नहीं अब यही करना है और व्हाट वाज दैट थिंग yeah I have to do this as a civilian से आती हूँ दिव्या but I come from a very strong civil background. My dadu was a freedom okay fighter. My dad wow and dadu both were the feminists. I think मैंने अपने घर में बचपन wow I was into sports. So I have my childhood was not a pampered childhood. So my okay childhood was a completely very disciplined. My dad were training me. और मेरे दादू बचपन से हमें बोलते थे कि अपने लिए तो सब कोई जीता है इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे देश के लिए कुछ करे उन्होंने अपने टाइम में बहुत कुछ किया था so they were expecting that from us also that is how I always wanted to do something for the nation and when it comes to the nation and it comes to India I think Indian Army से yes अच्छा और कोई organization yes नहीं करने के लिए and I was the blessed one also that I got that opportunity also Yes, ma'am. The start itself was such a kickstart. Nice, ma'am. तो मैम आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की आप लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम रिसोर्सेस लेस अभी बुक्स है गूगल है सब कुछ है हमारे पास दैट टाइम आपने प्रिपरेशन कैसे की अच्छा था कि वो ये गूगल बाबा का इतना ज्ञान we were so authentic हमें पता ही नहीं था इतनी सारी चीजें we were so genuine and Indian Army is looking for more genuine people हमें बहुत सारी चीजें मतलब फौज it is not a जब when it comes to I think army it is और SSB especially it is not a knowledge test बच्चे उसी में गुम होके रह जाते हैं it is more of a personality assessment test so we were lucky at that time कि ऐसा नहीं होता था we were so raw so fresh so whatever we were telling it to over there हम सिर्फ अपनी बात करते थे
वहां पे जब भी मैं एसएसबी के अंदर गई थी, तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट हेल्प टू मी. एंड व्हेन इट कम टू आर्मी, आई थिंक आई वांट टू टेल इट टू ईच एंड एवरी एस्पायरेंट बच्चा, ये 10 दिन के कोचिंग प्रोग्राम या वो Yes. प्रोग्राम, they are not going to change your personality overnight. You need to work upon it. और जब भी, you know, when it comes to creating good habits or changing your personality, all these things take time, take energy. You have to work on ground. So being from the sports background has helped me a lot. फाइन. और तो उन्हीं सब चीजों से अगर मैं अभी भी बात करूं, OLQs, आप लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है. बच्चे मेरे को पास इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं, मैम OLQs के बारे में आप वीडियोस बनाइए. Yes. बच्चा जब ये OLQs बने थे, वो किसके लिए बने थे? They were created not for the candidates, they were created for the psychologists, so that they can assess the candidates in a better manner. So when it comes to you all also, आपको एक एक OLQ की definition पढ़ के, you won't be able to ever instill those OLQs. वो सारे के सारे OLQs क्या है, वो सारी interrelated चीज है बच्चा. तो आप लोगों को वो पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है. When it comes to army, और जब SSB की भी बात आती है, I was so fresh जब मैंने ग्राउंड पे काम किया. जब आपके PIQ form, it says about you. When your PIQ form, you have written over there that you have participated here also, there also, you have done, you have achieved in your life also. That is going to bring, you know, एक पहले से एक impression चला जाता है इंटरव्यूअर के ऊपर. If you have achieved so much in your school, in your college time, so if you really want to work and build those OLQs, you have to work on ground in your school, in your college, to build those officer like qualities. और अगर मैं OLQs की भी आप लोगों से बात करूं, तो बच्चा एक एक पढ़ के क्या मिलेगा? कभी नहीं आप सीख पाओगे डेफिनेशन से. डेफिनेशन से सीखना आसान होता तो हर कोई सीख चुका होता. समझिए, अगर आपसे बात करी जाए, व्हाट इंडियन आर्मी इज लुकिंग फॉर, बेसिक्स, बेसिक इंटेलिजेंस, कि एक बंदे को प्रॉब्लम समझ में आती है, ग्रास्प कर सकता है प्रॉब्लम को, जितने रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को यूज करके ही कैन फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग. सेकंड, few personal qualities. First, selflessness. हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हमें सिखाती है, इंडियन आर्मी, योर कंट्री कम्स फर्स्ट, देन द मैन यू कमांड, एंड देन यू योरसेल्फ एट द एंड. अब आप अपने आप से पूछिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप कितने सेल्फिश और कितने सेल्फलेस हैं. आप में से कितने लोग हैं कि आप जब when you see your mother working in the kitchen or anywhere for the whole day, or your parents, you go out of the way to help them, you have that kind of empathy for them. आपके लिए जब उनके लिए एम्पैथी नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू बी सेल्फलेस फॉर अदर्स? यू नीड टू प्रैक्टिस इट इन योर डेली लाइफ. सेकेंड, इट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा, अडेप्टेबिलिटी. -40 डिग्री में भी इंडियन आर्मी रहती है, 50 डिग्री के अंदर भी रहती है. यू हैव टू मूव टू द डिफरेंट प्लेसेस. सो गेटिंग familiar with the unfamiliar circumstances, getting adjusted to those, that is also very important. And third is very, very important, integrity. This organization works upon that, and that is why Indian Army is doing so well. चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं ये सारे OLQs इन्हीं से रिलेटेड है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. Communication skills, yaar, you are going to be a leader in Indian Army, you are going to be command your men, you would be able to inspire them, आप उनको अपनी बात समझा पाए. इतनी basic qualities तो चाहिए, and they need both written communication also and your वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो. आपको मेहनत सीखने की जरूरत है. अब जब मैं इन सब चीजों की बात करूं, तो ये वाली चीजें बच्चा पढ़ने से नहीं आएंगी, ऑन ग्राउंड में जाके मेहनत करने से आएंगी. बिकॉज ऑल दीज स्किल्स, ऑल दीज ट्रेड्स आर कहीं ना कहीं, what are these are your skills which can be learned. आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें ऑलरेडी ये स्किल्स होंगी. नीड नॉट टू वरी. आप किसी भी गाइडेंस प्रोग्राम में जाओगे तो आप 10 दिन के अंदर ब्रश अप कर सकते हो एंड यू वुड बी एबल टू परफॉर्म गुड. बट अगर आपके अंदर ये स्किल मिसिंग है, आप समझिए इनमें से कोई चीज मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एटीट्यूड, यू नीड टू बिल्ड अपॉन दैट. आप खुद सोचिए, छोटी छोटी चीजों पे पूरा दिन क्रिप करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए निकल जाता है. जो चीज नहीं है उसी के ऊपर कंडीशनिंग हो रखी है फोकस जाने की, जो चीज है उसके ऊपर फोकस ही नहीं जाता है. आप सोचिए, जब तक इसको डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, दीज ऑल आर स्किल्स विच यू नीड टू प्रैक्टिस डेली इन योर लाइफ, देन ओनली यू आर गोइंग टू बिल्ड दोज OLQs. और इसका कोई बेटा और कोई तरीका नहीं है. आप कहीं जाइए नहीं जाइए, यू जस्ट नीड गाइडेंस. देन बच्चा मेरे से पूछते हैं, मैम आप प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस तो आपको करनी है. अगर आपको अभी भी टीचर चाहिए जो स्पून फीड करे, मैं बैठ के तुम्हें स्टोरी राइटिंग कराऊं, मैं बैठ के तुम्हें, फिर तुम फौजी बनने लायक भी नहीं हो.
I have told you the ways, I have told you, I have guided you, this is what needs to be done. It is your responsibility to make your timetable, to make your study chart, how you want to, because each and every student is different. You need to take a Yes. because time management skill is also very important. What you Yes, ma'am. really need to work upon. We all have 24 hours. आप उन 24 घंटों के साथ क्या करते हो, that is going to make a difference. So फौजी बनने के लिए जो मेरा टाइम था बच्चों, I was very, जब मैं गई थी तो आप सोच के देखिए, मैं ऑलरेडी, और मैं ये नहीं करी हूँ, इन अचीवमेंट्स ने मुझे फौज में नहीं वो किया, एसएसबी अच्छा, इन अचीवमेंट्स की वजह से, ऑन ग्राउंड काम करने की वजह से मैंने ये OLQs बिल्ड किए, देन आई गॉट रिकमेंडेड इन एसएसबी. बच्चों को बहुत डाउट होता है, जब मैं बच्चों को बोलती हूँ, व्हेन आई हैड गॉन फॉर माय एसएसबी, मैंने ऑलरेडी 20 नेशनल्स खेले हुए थे. ठीक है, मैं स्कूल की 5 साल ऑलराउंडर स्टूडेंट थी. जहां स्कूल की बात होती थी, आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू टेक इनिशिएटिव, मैम आई विल गो. ठीक है, चाहे डांस कॉम्पिटिशन हो, चाहे पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन होता, आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट. व्हेन इट केम टू माय कॉलेज आल्सो, इन कॉलेज आल्सो आई हैव बीन अवार्डेड विद अश्विनी कुमार ट्रॉफी फॉर बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट. फाइन. और ये सब करने के लिए बच्चा ग्राउंड में पसीना निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. अब उस टाइम हमने मेहनत नहीं करनी है, ठीक है. देन यू वांट टू गो आउट, हैव पार्टी, यू वांट टू पार्टी विद योर फ्रेंड्स, यू हैव योर ओन लाइफ, यू वांट नेटफ्लिक्स की, अमेज़न प्राइम की पूरी पूरी रात सीरीज देख डालते हो, और उसके बाद सोचते हो ये OLQs ऐसे बिल्ड नहीं होंगे मेरे बच्चों. PIQ also holds very very important in your, and I'm not telling कि मेरी ये अचीवमेंट थी इसकी वजह से, नहीं. when you work upon ground, इनकी वजह से क्या सारी चीजें, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप आ जाती है, बिकॉज हर रोज आप किसी ना किसी इंसान से बात कर रहे हो. एंड व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, यू आर गोइंग टू बी, कभी ना कभी आपको मौका मिलता है, स्टेज पे भी जाओगे, बात भी करोगे, माइक भी होल्ड करोगे, यू वुड बी एबल टू लर्न ऑल दोस थिंग्स. देन कमिंग टू योर टीम मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई को, स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज करना, आई लर्न ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम, ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम. सो वही मैं कहती हूँ, सबसे जरूरी है ऑन ग्राउंड काम करिए, जेन्युइन इंसान बन के काम कीजिए, अच्छी नीयत से काम कीजिए. फौजी अगर आपको बनना है ना बच्चा, मैं सच कह रही हूँ, एक थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हर प्रॉब्लम को समझ आती है सोल्यूशन, और एक अच्छी नीयत होनी चाहिए. जो चीजें नहीं भी है ना, उनको सीखने का जज्बा होना चाहिए. बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरों को देख के चीजें सीख जाते हैं, और बहुत सारे हैं जिनको कितना भी बोलते रहो, दे डोंट हैव एबिलिटी टू लर्न, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. फाइन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all the defense aspirant. Please don't get into the things which are meant for the psychologist to know. For you, working on the ground is much more important things. Practicing all those skills in daily life, with your every relationship with your parents, with your वो daily आपको कितनी problems आती है, उन problem में आप क्या करते हो, एक और problem ढूंढ के खड़े हो जाते हो, फिर कहते हो मेरा SSB अच्छा नहीं, SSB कैसे अच्छा होगा. आप सोचिए, डेली लाइफ के अंदर जब आप प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन डालोगे, हर प्रॉब्लम में से पॉजिटिविटी दिखाई देगी, हर चीज को कम्युनिकेट करोगे, मिसकम्युनिकेशन, हर रिश्ते को सिंपल बना के चलोगे. आप समझ के देखिए, बहुत सारी चीजें क्या होती है, हमको सारी दुनिया बदलनी है, बस खुद को नहीं बदलना, तभी तो प्रॉब्लम्स आती हैं. Then things gets difficult. Try to change yourself first. There you have to start from yourself. You have to start taking responsibility of your actions. But हम क्या करते हैं, सबको blame. We start और वहीं से एटीट्यूड खराब हो जाता है. You have to start from the basics. बच्चों सीधा ऊपर मत पहुंचो, आप सीधा आप बेसिक्स नहीं करते हो. When it comes to psychological testing also, आप सारे स्टोरी लिखना शुरू कर देते हो, वैट लिखना शुरू कर देते हो, बहुत प्रैक्टिस करते हो. उसका बेसिक क्या है, they want to check what? They want to check your inner personality. Mark my word, it is a very standardized test based upon projective technique. Writing skill is just one part. More important is your unconscious mind, your inner self of the personality, which is going to come out when there will be a constraint of time. You can't hide your thoughts, you can't hide your feelings, you can't hide your emotions. You would be able to hide in first 4, 5, 6 stories. उसके बाद जब टाइम का क्रंच होगा और उसके बाद 60 बैट एक साथ आएंगे, उसके बाद 60 सिचुएशंस एक साथ आएंगी, तो कहीं ना कहीं ना कुछ निकलेगा. सो कब अच्छा होगा तुम्हारा साइकोलॉजिकल, व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन ग्राउंड. जब आप ऑन ग्राउंड पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज साइकोलॉजिकल टेस्ट्स आर लुकिंग फॉर योर हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी. उसको तो हम ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम्स है, बट लिखने की हम प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, कहीं ना फिर क्लैशेस हो जाते हैं, कहीं GTO में कुछ कहते हैं, वो दैट इज द प्रॉब्लम.
बच्चा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा एसएसबी ठीक किया था, बिकॉज हमने ऑन ग्राउंड काम किया हुआ था, जेन्युइनली ठीक ठाक से इंसान थे ना, दोस्तों के साथ रहते थे, खुश होते थे, आउट ऑफ द वे जाते थे, लोगों को मदद करने का भी मन करता था। सो दीज आर द थिंग्स विच दे आर लुकिंग इन यू। फाइन मैम, वंडरफुल थिंग यू टोल्ड, लाइक आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास भी काफी स्टूडेंट्स आते हैं। एक सबसे बड़ी उनकी रिक्वेस्ट होती है मैम कि मैम एक अच्छा सा किसी का टैट भेज दो, हाँ ताकि मैं उनको देख के लिखूं। राइट, टेल देम, जैसे आपने बोला मैम जेन्युइनिटी, इस पे आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं कि बताते हम भी है कि जेन्युइन बनो, जेन्युइन लिखो, अपने आप को डालो, हर किसी में डीएम मत बनाओ, आर्मी ऑफिसर मत हाँ बनाओ। जी बेटा, व्हेन इट कम्स टू द यस। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बच्चा, टैट सेज व्हाट, it is based on the projective technique of assessment of psychology यस। personality, which says that they want to assess your personality based on your unconscious mind. And biggest blunder you do what is, you read the story, you यस। read the stories, और आप कहीं से भी पढ़ते हो, चाहे गूगल, थैंक गॉड इन आवर टाइम गूगल बाबा वाज नॉट देयर, इतनी यस। किताबें भी नहीं होती थी, आप किताबों से पढ़ लेते हो। और क्या होता है बच्चा, वेन एवर यू रीड अ स्टोरी इट स्टेज इन योर माइंड, यू हैव रेड इट। और जब कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम होता है, एंजाइटी एग्जाम की होती है, सारी चीजें मिलके आपकी वही स्टोरी एक या दो बार तो आप पक्का से निकालोगे, एंड दैट्स वन द ब्लंडर। आप 12 की 12 स्टोरियां शायद बहुत अच्छी इंग्लिश से आप नहीं लिख सकते, बहुत बड़ी नहीं लिखेंगे, बट इफ दे आर जेन्युइन स्टोरी विच आर रिफ्लेक्टिंग योर पर्सनैलिटी, योर ट्रेड्स, देन ऑल द स्टोरीज आर गुड स्टोरी। बच्चे मुझे इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज लिखते हैं, मैम आप, मैंने ये स्टोरी लिखी है, क्या ठीक है? बच्चा, मैं कैसे, मैंने आपका PIQ फॉर्म नहीं चेक किया, यस। मैं आपके बारे में नहीं। वेन एवर अ साइकोलॉजिस्ट see your story, they have your PIQ form with them, whatever, so they want to, they relate your life with those stories, and in case if both the things are correlated, then only you यस। have performed good in your psychological testing. So staying genuine is the key. How you can practice about genuine का मतलब क्या है? अपनी लाइफ, अब आप खुद सोचो, सब कितने साल के हैं जो अपीयर करते हैं? 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24, जिंदगी में 24 साल ले लिए, और क्या आपके पास 12 अपनी जिंदगी की कहानियां नहीं है लिखने? यस। और अगर नहीं है यस। तो इट मीन्स यू आर लैकिंग मेजरली ऑन योर सेल्फ अवेयरनेस, या आपने कभी अपने आप को मौका ही नहीं दिया, असेस करने का मौका दिया तो कभी आपने लिखा नहीं। बच्चा, अगर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, तो अपने सेल्फ जर्नल्स लिखना स्टार्ट करो, उससे बड़ी, बिकॉज कोई बड़ी चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ राइटिंग स्किल। जब आपको अपने थॉट्स को पेपर पे लिखना आ जाएगा मेरा बच्चा, अपने आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और जब आप डेली लिख रहे हैं, और डेली प्लीज व्हेन यू राइट अ सेल्फ जर्नल, please don't write I get up early in the morning, I had my breakfast, I went to the college, I attended the class. This is not a self journal. When you are writing a self journal, write in a day what was the best thing of the day and what was the worst thing, what was the problem, and then outcome of that problem should be positive, how you handled that situation for the day. And when you will be writing it daily, आप सोचिए आपके पास कितनी कहानियां होंगी अपनी लाइफ से लेके, हर फोटो को देख के आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर याद आएगा अपनी लाइफ से लेके। बट वो तो हम प्रैक्टिस नहीं करते। आपको चाहिए आप 50 स्टैट स्टोरीज लिख के चले जाए और आपका नहीं बच्चा, जहां शॉर्टकट मारोगे वहां पे गड़बड़ ही गड़बड़ होगी। यू रियली नीड टू वर्क अपॉन बेसिक्स। फौज के अंदर जब जाते हो ना, OTA अकेडमी के अंदर, आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों, बेड कैसे बिछाना है, अलमारी कैसे लगानी है, मॉस्किटो नेट कैसे लगाना है, छुरी कहाँ पकड़नी है, कांटा कैसे पकड़ना है, खाना कैसे खाना है, यूनिफॉर्म कैसे पहननी है, ओ जी, एवरीथिंग दे टीच, दे स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। उन 1 साल के अंदर सोचो, all the boys Yes, and ma'am. girls who go there, when they pass out from there, look at them how graceful they are. हर लड़का एक जेंटलमैन बन के निकलता है, हर लड़की एक गर्ल, एक विमेन ऑफिसर बन के निकलती है, फीलिंग सो, बिकॉज देयर दे वर्क अपॉन बेसिक। हेयर आल्सो बच्चा 1 ही साल लगेगा। स्टार्ट विद योर बेसिक्स। बेसिक्स करने नहीं है, प्रैक्टिस करनी नहीं है, जेन्युइन अच्छा इंसान बनना नहीं है, बट लिखने की प्रैक्टिस करते रहो बच्चा, कहीं ना कहीं ब्लंडर जरूर मारोगे। ऑन ग्राउंड काम कीजिए, कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। जब टीचर पूछती है असाइनमेंट कौन करेगा, तब तो अपनी नजरें ऐसे छुपाते हैं कि नजर ना मिल जाए मैम से, मैम से नजर मिल गई तो आज एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा। और जब तक ये नहीं करोगे बच्चा,
कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी पर्सनालिटी को रातों रात ग्रूम कर सके। कोई भी कहता है कि 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा देंगे। बच्चा, जब तक आप कम्युनिकेशन स्किल्स खुद डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी प्रायर कोई कोर्स कुछ नहीं करा सकता। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, पेपा पिग देख के कि आप ब्रिटिश एक्सेंट बोलते हैं, लुक एट देम, उनको किसी ने नहीं सिखाया है। Mark my, they saw it, they practiced it, they were continuously watching it, they learned it. Same goes to you also. If it is coming to Angrezi also, it is just a language, it is not a subject. Read as much as you can, speak as much as you can, listen as much as you can, watch as much as you can. अपने सारे sources से, अपने जितनी आपकी brain receive करती है information, in all information, start using it, start practicing. I'm sure आप 3-4 महीने में आप काफी कुछ इम्प्रूव करोगे। बट हम 1 हफ्ता प्रैक्टिस करते हैं फिर भूल जाते हैं, आज रात तो किया नहीं, कल कर लेंगे, तो फिर कहाँ से होगा, है ना? यस मैम, एक कॉमन क्वेश्चन। यस मैम। हाँ जी। एक डीएम में आपके भी आया होगा मैम, हमारे भी आता है, मैम इंग्लिश कैसे सुधारनी है। तो उसका बेसिक है कि आप ही को प्रैक्टिस करना है। फिर भी बच्चे ढूंढते सबसे शॉर्टकट कि नहीं, एक हफ्ते का कोर्स बता दो, बस उसमें कुछ हो जाए। तो मैं 1 सेकेंड, हर इंग्लिश वाला क्या करेगा, आप सोच के देखो। अब जब हिंदी है, हिंदी आपने कैसे सीखी? टेल मी, इट्स अ लैंग्वेज। आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। ग्रामेटिकली मैं भी पता नहीं कितनी गलतियां करती होंगी, ठीक है, बहुत करती होंगी, बट स्टिल कॉन्फिडेंस इज देयर। आई अंडरस्टैंड, आई एम एबल टू आई अंडरस्टैंड थिंग्स, और मैं अपनी बात दूसरे को समझा सकती हूँ, है ना? उतनी ही अंग्रेजी चाहिए फौज के लिए आपको, ठीक है? उन्हें शशि थरूर नहीं चाहिए, उन्हें बेसिक इंग्लिश चाहिए, आप समझिए। और बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए बच्चा, आप चाहे कोर्स ज्वाइन करो चाहे ना करो, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। हाउ यू कैन प्रैक्टिस? नाउ कमिंग टू वन, डेली 15 minutes of reading, I hope you can do that. 15 minutes of audio, I hope you can do that. Whenever you are going for a walk, audio अपने अंदर ऑडियो बुक्स डाल लीजिए, keep listening to them, watch a program in English only, watch the news in English only, practice at home. तब आपको डर लगता है, oh my God, अगर मैंने बोला तो कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा जाएगा। बेटा, या तो उस डर के साथ जीते रहिए कि कोई मजाक उड़ाएगा, या उस डर से बाहर निकलिए और कहिए चाहे बेशक से कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, बट आफ्टर 3 months when I'll be appearing for my SSB, वहां पे मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है? तो अब आपको देखना ये फेस तो आपको करना ही करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर एसएसबी इंग्लिश, देखिए इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री बच्चा, ठीक है? यहाँ पे आप सोचिए, इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए भी दी जा रही है बिकॉज दैट्स अ कॉमन लैंग्वेज विच एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। आप समझिए, है ना? आप इधर चले जाइए, साउथ में चले जाइए, हमें वहां की लैंग्वेज नहीं समझ आती। नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, मैं तो कह रही हूँ हरियाणा के अंदर इतने डायलेक्ट है, आपको झज्जर वालों को आपको भिवानी की नहीं समझ में आएगी, भिवानी से आओगे तो आपको फरीदाबाद की नहीं समझ में आएगी। सो इट इज सो, इतना ज्यादा है, तो आपको ये बेसिक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और आपके पास कितना टाइम है? स्कूल से आपको सपना होता है, सब आई थिंक स्कूल या कॉलेज में सब डिसाइड कर लेते हैं मुझे फौजी बनना है। 2 साल 3 साल 4 साल, इतना मुश्किल तो नहीं है यार इन 3 साल के अंदर बेसिक इंग्लिश सीखना। कितनी अंग्रेजी चाहिए? माय नेम इज सो एंड सो, आई डिड दिस, आई डिड दैट, इतनी तो बोलनी है। और कितनी होती है सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करना। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग सम फ्लावर इंग्लिश फ्रॉम यू, दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेसिक इंग्लिश फ्रॉम यू, और गुड जोश, गुड जज्बा फ्रॉम अ कैंडिडेट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट मीन ओनली इंग्लिश बच्चा, यू कीप ऑन प्रैक्टिस। आप अपनी अंग्रेजी प्रैक्टिस कर देते हो और कम्युनिकेशन स्किल्स पे प्रैक्टिस। हार्वर्ड की स्टडी भी कहती है बच्चा 7% ऑफ टाइम ओनली वर्ड मैटर्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स, रेस्ट 58%, 36% इज योर वॉइस टोन, your body language, your facial expression. अगर यही बात मैं सोचो इंग्लिश में से बोल, then these are very important skills which you really need. Also I'm speaking in English, but is it going to make an impact on you? और फौजी जब बनना है तो आपको इंस्पायर करना आना चाहिए लोगों को, मोटिवेट करना आना चाहिए लोगों को। आपको क्या लगता है ये वॉर जो जीती गई है, ये यंगस्टर्स के जोश की वजह से जीती गई है? आप समझिए कितना जोश होगा, और वो जोश अपनी कंपनी के अंदर लेके गए होंगे। जब जाते हैं ना, दिल मांगे मोर, और जब कहना होता है, दे आर एबल टू एक्सप्रेस इट टू देयर ट्रूप्स। आप जो फील कर रहे हो, और जब तक अंदर से फील नहीं करोगे, किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, किसी को नहीं मना सकते। बच्चे मेरे से पूछते हैं, मैम व्हाट शुड बी द राइट आंसर, व्हाई डू वी वांट टू जॉइन? हाय बच्चा, मैं कैसे बताऊं? यू टेल।
भाई तुम्हारी दिल की बात जो दिल से निकलेगी कभी तभी दूसरे के दिल तक पहुंचेगी. सो इन SSB देयर आर नो राइट आंसर, देयर आर नो रॉन्ग आंसर. All the answers are right answers if they are your answers and you are able to justify them from your life experiences. Absolutely. All the answers are right answers. Fine. मेरे से पूछा गया था what will you do after if you will not get selected? मैं कहा then I'll go for my I'm already preparing for my GRE, sir. I'll go to US for my PhD. I gave him very answer. कहते then why are you here? मैं कहा because I think that Fauj is another good organization to work on and they need young and bright students like me. That's why I'm here. So you should have that confidence. और वो confidence कहाँ से आएगा? जब आप अपने आप पे believe करोगे, आपको पता होगा आप वो क्यों करना चाहते हो, आपको पता है आपने अपना 100. Confidence वही होता है जब आपको पता है आपने कहीं ना कहीं काम चोरी करी है, शॉर्टकट मारे, वही एंजाइटी आती है, वही सब कुछ होता है. सो यू रियली नीड टू वर्क अपॉन योरसेल्फ फर्स्ट. अपने ऊपर मेहनत करना शुरू करो बच्चा, अपने थॉट प्रोसेसेस और हर चीज में सच कह रही हूँ यहाँ से स्टार्ट होती है. दिस इज वेरी पावरफुल. योर माइंड, योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल. जैसा सोचोगे वैसा फील करोगे, जैसा फील करोगे वैसा बिलीव करोगे, जैसा बिलीव करोगे वैसे एक्शंस लोगे, और जैसे एक्शंस लोगे वैसी तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाएगी बच्चा. सो इतना मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे कदम लेते जाइए. लाइफ एकदम से फ्लारी नहीं होने वाली है, आप समझिए. डेली जितने रिसोर्सेज है, जितना टाइम है, जितनी आपके पास वो है स्किल्स है, उसका बेस्ट करते जाओ. उसमें शॉर्टकट मत मारो, एक अच्छी नियत से करते चले जाओ वो काम. आई एम श्योर आप एक अच्छे इंसान भी बनोगे एंड यू विल बी द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर SSB आल्सो. मैम आई हैड गूज बम्प्स लिसनिंग टू दिस. आई हैड, एंड मैं भी कमेंट्स पढ़ रही थी, काफी लोग लिख रहे थे वन डे आई एस्पायर टू बी लाइक यू. मेरा भी सेम थॉट है मैम. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. मेरे की तरह नहीं, अपनी तरह बनना. फिर मैं कहूंगी माय प्राउड स्टूडेंट नीड नॉट टू बिकम लाइक एनीवन. अपनी तरह बनोगे तो जरूर कुछ अच्छे बनोगे, आई एम श्योर. ओके मैम, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग. आई थिंक आपने एक जिसमें सबको बोल दिया है कि ओरिजिनलिटी रखो, दूसरों के आंसर्स कॉपी करना बंद करो, गूगल पे जाना बंद करो, लिखो तुमने लाइफ में क्या किया, सोचो, और जब स्टोरीज आई लिख दो. इतना इजी हो जाएगा कि आई थिंक कोई गूगल स्टोरी से मैच नहीं करेगा. So everybody who is watching, all about you. They want to know your personality. They want to know you. और हम वहां जाके पता नहीं किसी और को पोर्ट्रे करते हैं, फिर कहाँ से अच्छा करोगे? They want to know you as a person. What kind of traits you have. और हमेशा लाइफ में रखना, जेन्युइन होने से बड़ी कोई चीज नहीं है. अभी रिसेंटली मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैम ऐसी बहुत सारी कमियां होती हैं जो हमें पता होती है, अगर वो हम एडमिट करते वहां जाके, है ना, तो फिर हम अपने आप को रिजेक्शन के पास लेके जाएंगे. ठीक है बड़ा. मैं कहा अगर उनमें से कुछ कमियां ऐसी हैं, इट मीन्स दैट, और आप ठीक है झूठ बोल के आप चले भी जाओगे, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी लायबिलिटी टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, देखिए ये फौज अच्छा क्यों कर रही है, वी वर्क अपॉन इंटेग्रिटी. आप समझिए, आप कितना भी, और मुझे लगता भी नहीं SSB के अंदर बहुत झूठ चल सकता है. दे आर वेरी स्टैंडर्डाइज्ड पीपल, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल. GTO जो वहां बैठे हैं, साइकोलॉजिस्ट जो वहां बैठे हैं, IO जो बैठे हैं, तीनों के तीनों कहीं ना कहीं तो पकड़ ही लेते हैं. और एक आधे जो झूठ बोल के फौज में आए हैं तो उनका सैंपल बना रहता है पूरी जिंदगी के लिए. तो ठीक है, तो बोल के अच्छी जिंदगी तो नहीं मिलती आपको फौज के अंदर अगर हो भी जाओगे. So be genuine, true to yourself. हम में से कोई, nobody is born perfect, nobody dies perfect. We all have our weaknesses. Simple thing बच्चा, self awareness, पता होना क्या हमारे अंदर खूबियां है, क्या हमारे अंदर खामियां हैं. हर इंसान के अंदर there are few positive strengths. Please focus on your positive strength and keep working little bit on your weaknesses. That's it. धीरे धीरे कोशिश करते जाओ, और रातों रात नहीं कोई वीकनेस दूर होती. Whenever it comes to creating good habits, fulfilling your dream, it is going to take time, it is going to take energy, it is going to take your effort. कितने कंसिस्टेंट हो, दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जिंदगी रातों रात चेंज नहीं होती, धीरे धीरे होती है. ठीक है, कल बेशक से लगेगा, इफ आई टेल इट टू द स्टूडेंट, बच्चा प्लीज मेक सम गोल्स, मेक सम स्टडी चार्ट. मैम स्टडी चार्ट बनाते हैं बट फेल हो जाता है. बच्चा 10 चीजों में से 5 तो करते ही होगे, 50% तो फॉलो करते होगे, एटलीस्ट कुछ तो किया. बट आवर ह्यूमन साइकोलॉजी इज लाइक दैट. हमारी इतनी कंडीशनिंग हो गई है टू फोकस ऑन द थिंग्स वेयर वी आर स्टक.
विच वी डोंट हैव, और कौन सी चीजें जो हमारे पास नहीं है, और हम बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं व्हाट यू ऑलरेडी हैव. एटलीस्ट यू वर एबल टू डू 5 थिंग्स. आप कुछ तो कर रहे थे ना. सो प्लीज फोकस ऑन दैट. अगर अच्छी चीजों पे फोकस करोगे तो अच्छी एनर्जी आप लोगों को मिलेगी. सो प्लीज ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू हैव. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वही आपको मोटिवेटेड रखेगी. उन पे फोकस करोगे तो अगले दिन सुबह उठ के काम करने का भी मन नहीं करेगा. यस, सही कहा मैम आपने. दिस इज वन थिंग आई ऑल्सो अप्लाइड. हम टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं, अगर पूरा नहीं हुआ और अगर मैंने अपने ब्रेन को कंडीशन किया कि आज तो मैंने किया ही नहीं है, तो यू गेट डिप्रेस्ड एंड यू लाइक नहीं, कल से नहीं बनाना. इंस्टेड वी शुड थिंक कि चलो 5 तो हो गए, अब अगले दिन 7 कर लेंगे. वेरी ट्रू. हाँ, और हर दिन अच्छा नहीं होता, हर दिन. बट दिस इज लाइक लाइफ यार. ईसीजी मशीन भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलती है. सीधी हो जाएगी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी. पुरानी फिल्मों में देखा नहीं है, टू करके लाइफ. सीधी जिंदगी नहीं चाहिए यार. अप्स भी आएंगे, डाउन भी आएंगे. क्या हो गया, डाउन आ गया, वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन इट यार. जब तक हिम्मत है, जब तक जज्बा है, जब तक जोश है, आई एम श्योर हर मुश्किल से आप बाहर निकल सकते हो. और ऐसे इंसान चाहिए उनको फौज में. फौज में भी डेली तो क्राइसिस होता है कुछ ना कुछ, और आपको उस क्राइसिस को हैंडल करना है एज अ लीडर. दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग इन यू, कि आपके अंदर वो है या नहीं जज्बा. प्रॉब्लम को देख के प्रॉब्लम तो नहीं निकाल रहे. बहुत सारे बच्चे 50 और निकाल के खड़े हो जाएंगे. मैम वी हैव वन क्वेश्चन एक आया है अबाउट योर एकेडमी डेज. थोड़ा बहुत अगर आप हमें बता सकें कैसा रहा, स्टार्टिंग में कैसा रहा. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ योर ईयर, जहां आप रगड़ा खा के भी खुश होते हो. उस टाइम बेशक से मन से गालियां निकलती है, बट व्हेन यू पास आउट फ्रॉम एकेडमी, इट इज जस्ट नॉट दैट यू आर फिजिकली स्ट्रांग. More important over there is you are so mentally strong after that training. और आपको सच्ची में ऐसा लगता है अब तो दुनिया जीती जा सकती है, इतना मुश्किल तो नहीं होगा. फाइन. सो माय डेज वर आल्सो बहुत ही अच्छे थे. बीइंग फ्रॉम ऑलरेडी फ्रॉम द स्पोर्ट्स, तो हमने अच्छा भी किया एकेडमी के अंदर. ठीक है, आई वाज अमंग्स द टॉपर ओनली. हम टॉप 3 के अंदर थे. ठीक है, पास्ड आउट एज JU सुनैना ओवर देयर. एंड बट लेट मी टेल यू अगेन, अब इसका भी मैं एक चीज बताती हूँ. व्हेन आई वाज इन एकेडमी ना, तो मैं जब एकेडमी में गई थी, आई हैड गॉन देयर फॉर एज अ, मैं एजुकेशन कोर्स के लिए गई थी. आई हैड ऑलरेडी डन माय मास्टर्स, और मैं पहले पढ़ा रही थी बिफोर ज्वाइनिंग. और जब आप पढ़ा रहे होते हो तो दुनिया बहुत प्यार करती है, और अगर आप अच्छे टीचर हो तो और ज्यादा प्यार करती है. यू नो दैट. तो मुझे बहुत प्यार की आदत हो रखी थी. सब मुझे गुरु मैया, सुनैना मैम, तो बहुत इज्जत और बहुत प्यार की आदत थी. ठीक है, मोमेंट यू, और फिर स्पोर्ट्स में भी थी. और स्पोर्ट्स के अंदर भी ना, इफ यू आर प्लेइंग गुड, अच्छे प्लेयर हो, तो हर कोई आपको थोड़ा ना चढ़ा के रखता है. तो आई हैव ऑलवेज बीन देयर. एक अच्छा बच्चा थी तो हर कोई पैम्पर करके ही रखता था, कभी इतना वो नहीं. हाँ, माय डैड वाज, मतलब सबसे ज्यादा मैंने अगर डांट खाई है तो अपने डैड से खाई है. तो जब मैं एकेडमी में जाती हूँ तो फर्स्ट डे आई वाज फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो मेरा पहला नाम था ऊपर. तो फर्स्ट डे मुझे ही बुलाया जाता है, बिकॉज लेडी कैडेट्स मेरे टाइम में सिर्फ 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती थी. ठीक है, तो वहां पे फिर आपको वो सीरियल नंबर वाइज अपॉइंटमेंट बना देते हैं, जस्ट टू रिपोर्ट टू योर DS. तो आई वाज द फर्स्ट वन ओवर देयर. तो मेरा पहला दिन, पहले तो बाल कट गए. ठीक है, हैंडल हो गया वो भी, चलो ठीक है. आई वाज नॉट इनटू लुक्स एंड ऑल, सब अच्छा ही लग रहा था. आई हैड गॉन देयर टू रिपोर्ट टू माय DS. आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे. मैं वहां जाती हूँ, जाके कहती हूँ, मैम LC सुनैना रिपोर्टिंग. कहते ब्लडी हु अलाउड यू टू कम इनसाइड, गो आउटसाइड एंड बेंड डाउन. मुझे समझ में नहीं आया मेरी जिंदगी में क्या हुआ. आई वाज, मैं सुन हो गई थी. मैं कहूँ मैं सही जगह भी आई हूँ या नहीं. सही, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी. दोस्त मतलब इनिशियल फर्स्ट डे. और जब पास आउट, आपकी ईगो को डेली क्रश किया जाता है. और ये ईगो ही बहुत बड़ी चीज है जो लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. इफ यू डोंट हैव दिस ईगो, लाइफ बिकम्स वेरी वेरी इजी. तो वहां पे भी ये हुआ. ठीक है, जाने के बाद इनिशियल टाइम में NCC की कैडेट नहीं थी. ठीक है, मुझे बड़ा लगा, ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम मेरा DST पास नहीं हुआ. ठीक है, और हमारा 5 का ग्रुप होता था. फाइन. तो हम, मैं, खत्री, शुक्ला, अंशु और ज्योति, वो तीनों, मतलब 4 हम मेन थे. वो तीनों अपॉइंटमेंट बन गई फर्स्ट टर्म के बाद. एंड आई वाज द वन, क्योंकि मेरा DST पास हुआ था, स्पोर्ट्स में मैं अच्छी थी, आई वाज लेफ्ट बिहाइंड. बड़ा दिल पे लगा यार बच्चों. उसके बाद मैंने जो मेहनत की एकेडमिक्स में, 50 में से 48, 49 हर पेपर में. एंड माय DS यूज्ड टू बी लाइक, ब्लडी आर यू चीटिंग इन राइटिंग,
all you remember is right. मैं कहा no ma'am, I'm working hard. Bloody working hard when? ठीक है, you have time to work hard also. मैं कहा yes ma'am, I'm doing. तो वैसे करके, and when I passed out, I was in the top 3 in the merit. Fine, wow. Because अब जाके वहां पे जब मेहनत करना शुरू करते हो, and in academy also बच्चा, जब मेरा एंड में जर्नल LC with पट्टी parade speed. Are you able to hear me? Audio, हाँ अभी I can hear you ma'am. Yes. तो जब हमारा जोजिला का अकेडमी का मिला था तो आई वॉज फेमस फॉर LC विद पट्टी परेड स्पीड. वहां पे हमें स्क्वाड्स के अंदर जाना होता था, एंड आई वॉज फेमस अमंगस्ट ऑल आवर उस्ताद, ड्रिल उस्ताद, PT उस्ताद, कि फर्स्ट स्क्वाड में आने वाली सुनैना होगी. तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर बच्चों हमेशा टाइम को वैल्यू दी है. टाइम इज मोस्ट पावरफुल थिंग. और सबसे पहली चीज आपको माइंड से ये निकालनी पड़ेगी कि टाइम इज समथिंग विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल. नो, managing your own time is very much in your control. You need to focus upon the things what matters to your lot. 24 घंटे सबके पास, और उन 24 घंटे के साथ हम क्या कर रहे हैं is going to make all the difference. Fine, I have always valued time in my life, and that I learned from my father. उन्होंने मुझे सिखाया बचपन से. I've never seen him getting late anywhere, anytime. मैं कभी स्कूल में, ग्राउंड में, आई नेवर गॉट लेट. बहुत कोई मजबूरी होती है कि मैं कभी लेट हूं, अदरवाइज आई एम ऑलवेज ऑन टाइम. आई वैल्यू माई टाइम अलॉट. आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत हेल्प करती हैं आपको लाइफ में अच्छा करने के लिए. मैम आई जस्ट रियलाइज आपसे बात करते करते 40 मिनट हो गए, एंड ऑल आई कुड गेट इज मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन. इससे भी वन थिंग आई टेल द स्टूडेंट्स की जो मैम टाइम की बात कर रही हैं, ये हम अपने रोज की लाइफ में लगा सकते हैं, और यही चीज SSB में जाके खुद से ही दिख जाएगी कि वैल्यू टाइम क्लियरली दिख जाता है. तो मैम वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स. इन दी एंड आप बच्चों के लिए दैट 1 टिप और 2 टिप्स जितने आप चाहें, दैट थिंग कि उन्हें SSB और लाइफ दोनों में काम आएंगी, हाउ दे शुड लीड देयर लाइफ. स्टे जेन्युइन. ठीक है, बहुत जरूरी है. और मुझे लगता है दिस वर्ल्ड इज योर रिफ्लेक्शन. आप जो ढूंढने जाओगे आपको वही मिलेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑल शुड लर्न. फाइन, इफ यू आर गोइंग टू लुक फॉर फ्रेंडशिप, लव, happiness, prosperity, I'm sure you're going to find that. If you're going to look for indifferences, fights, attitude, आपको वो भी भर भर के मिल जाएंगे. ठीक है, तो आपकी जिंदगी आपके हिसाब से है, और गोल्स सबकी लाइफ में होना चाहिए. और आई एम श्योर जितने भी सक्सेसफुल लोग और जितने भी अनसक्सेसफुल लोग हैं, सबके पास गोल्स होते हैं. व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज द एक्शन दे टेक इन अचीविंग दोज गोल्स मेक्स ऑल द डिफरेंस. सो योर एक्शंस आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस. बच्चा, सबको फौज ज्वाइन करनी है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट सिर्फ SSB क्लियर करना इज नॉट कि यू विल अचीव योर गोल एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. सक्सेस इज अ जर्नी. It is not a destination. एक करने के बाद दूसरा, दूसरा करने के बाद तीसरा, तीसरा करने के बाद चौथा. So start enjoying this journey. Every time you are doing something, you are learning something. But हमारा focus results के ऊपर जाता है, जो हमें anxiety देता है. Stop focusing on the result. बच्चा SSB के लिए जा रहे हो, on ground तैयारी करो, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके एक अच्छा इंसान बन के, आई एम श्योर SSB नहीं भी होगा फिर भी एक इतने अच्छे इंसान बन जाओगे कि जिंदगी में जहां भी जाओगे अच्छा ही करोगे. और उस टाइम शायद आपके पास ये कॉन्फिडेंस भी होगा कि आप पर्सनल इंटरव्यूअर को भी कह सकते हो, सर अगर मेरा आज नहीं होता है देन इट इज गोइंग टू बी अ लॉस टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टू मी, बिकॉज वेयर एवर आई विल बी गोइंग एटलीस्ट आई एम दैट कॉन्फिडेंस दैट आई वुड बी एबल टू डू जस्टिस टू माई लाइफ, कि मैं अपनी लाइफ तो अच्छी बना लूंगा. बिकॉज हार्डवर्क जिसको करना आ गया, तो हार्डवर्क एक नशे की तरह होता है. इट बिकम्स अ एडिक्शन. फाइन, जिस चीज की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप सबके सब जितने भी डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं, बच्चों बेसिक्स पे काम करो, जेन्युइन रहिए, अपनी अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम कीजिए. उसके बाद आप अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड पे काम कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी पर्सनल क्वालिटीज पे छोटा मोटा काम कीजिए. जहां सेल्फिश हो रहा है, पता चल रहा है आज मैंने अपने बारे में सोचा, उस टाइम कोशिश कीजिए थोड़ा सा बाहर निकलने की. बीट विद योर मदर, बीट योर फादर, किसी के साथ भी. आई एम श्योर जब ऑन ग्राउंड 1-2 साल ये मेहनत करोगे तो अच्छे अपने आप ही बन जाओगे. नीड नॉट टू वरी. और फौज तो चाहती है यार तुम लोगों को इतनी दूर बुला रही है, इतना खर्चा
करती है, आपको आने जाने का किराया देती है, वहां पे रखती है, इसलिए थोड़ी कि आपको वहां से रिजेक्ट करके भेज दे, है ना। इसलिए किस लिए, दे वांट टू फाइंड आउट द बेस्ट इन यू, और तभी वहां पे इतने लोग हायर किए हैं, इतने प्रोफेशनल्स हायर किए हैं, सो दैट वो हर जगह आपको चांस देते हैं टू प्रूव योरसेल्फ। अगर बच्चा थोड़ा साइकोलॉजिकल में गड़बड़ कर गया तो जीटीओ के अंदर भी देखो 9 एक्सरसाइज, 9 टास्क देते हैं, ठीक है, चलो आपने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर नहीं किया, हाफ के अंदर बच्चा कुछ कर पाएगा, हाफ में अच्छा नहीं, चलो कमांड टास्क के अंदर आप अपना हुनर दिखा पाओ, फौज तो आपको बहुत मौके दे रही है दिखाने के, ठीक है। तो लगे रहिए जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता। आई एम श्योर जब अच्छी मेहनत करोगे तो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, नीड नॉट टू वरी, फाइन। चलिए, दैट्स इट। थैंक यू मैम, इट वाज लवली टॉकिंग टू, सो मोटिवेटिंग, एंड आई विश मैम आप फ्यूचर में फिर से हमारे साथ लाइव आए, बिकॉज आई लव टॉकिंग टू यू मैम। अपने बच्चों के लिए कभी भी कहीं भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बात किसी को भी समझ में आ जाए, थोड़ी आ जाए, और कुछ अच्छे अफसर हमारे इंडियन आर्मी में आ जाए, और आई एम तो स्टिल, मतलब माय हस्बैंड इज स्टिल सर्विंग, और फौज में कभी कैंट में घूम रही और बच्चा आके मुझे कहे मैम आई हर्ड यू दैट डे, इससे अच्छा क्या होगा, फाइन। चलिए, फॉर यू ऑल, ऐसे कभी कोई मुझे मिलना और कहना मैम दैट वाज द डे व्हेन आई हर्ड यू एंड दैट वाज द डे, सो आई एम लुकिंग for that day, and all the very best to each one of you. I'm sure you all are going to do very well in your life. छोटे छोटे कदम लेते जाइए अपने गोल की तरफ, I'm sure ये जर्नी भी एंजॉय करोगे, कुछ अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। Thank you so much ma'am for your time and for your words. Thank you so much. I see so many messages. Thank you ma'am for the motivation. सब में जोश भर दिया मैम आपने। One of you, Manoj, Ashish, फिरकी। ठीक है, चलिए बच्चा, टेक केयर, एंड देयर आर सो मेनी पीपल, कैडेट विशाल, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू गाइस आल्सो बच्चा, ठीक है। चलिए अनमोल, yes Anmol, I'll post. फाइन, चलिए, फ्लाई एंड ऑल, शर्मा, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, कीप स्माइलिंग, लाइफ, ठीक है, दुनिया बहुत अच्छी है, आराम से जिए इसको, खुश रह के जिए, जिंदगी बहुत लंबी है, अच्छा ही करोगे, नीड नॉट टू वरी, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। So I'm just thank you ma'am, signing it out. yes. Bye Divya, and it was so nice interacting with you. Keep up the good work. All the very best. Thank you ma'am. Fine. Thank you so much. You're welcome. Thank you everybody for joining in. आप सबके कमेंट्स देख के आई एम श्योर कि पहली बात तो मैम की बातें सुन के आप सब में जोश आ गया होगा। YouTube चैनल का लिंक इस SSB का है, आपको मिल जाएगा प्रोफाइल से, you will get it. Yeah, few things to take away from ma'am's talk was, even if you're a screen out, conference out या कुछ भी, work so hard the next time that you know कि even if they're not taking you, you come back laughing and you say इस बार नहीं ना, अगली बार हो जाएगा। I have a student of mine जो अभी लाइफ में है, and he got conferenced out and he came back and he's thank you ma'am and he was laughing and I asked why are you laughing, ऐसा क्या हो गया, तुम conference out हो गए हो। The confidence he had in him कि दी इस बार नहीं हुआ ना, अगली बार हो जाएगा, क्योंकि उसने उतनी मेहनत की है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार। That is how much you should work hard and come back smiling, either get selected, एक बार रिजेक्ट हो कोई नहीं, अगली बार हो जाओगे। So thank you everybody. If you have any doubts, you can post here. I'll take up doubts for 2-3 minutes. Any doubts that were not answered? I see so many people joining in. Thank you. Okay, I cannot see doubts. चलो ठीक है, everybody have a good day and please like and share, and we will come up with more such motivational talks soon. Thank you everybody, good night.